guys, welcome back to the channel. In this video, we have Arnav Kiladar with us. Guys, he is like in IIT Goa. Well, Goa is like a fun place to be at, but he will tell you like what's actually fun in Goa and how you can like get over there and like yeah, just like do more fun stuff and maybe like get like a degree from an IIT. So Arnav, how about let's go on. You introduce yourself and what you're doing right now. So myself, Arnav Kiladar, I am currently at IIT Goa and I am pursuing BTech in Mechanical Engineering. And I am also at the position of Media Secretary in the Student Council here. And I am just living my life here. That's fun man. मतलब गोवा भाई आई थिंक हर किसी को जा रहता है गोवा लाइक इधर फॉर लाइक अ ट्रिप सपना सपना रहता है. सपना रहता सपना है रहता हो सबका नहीं पाता कुछ लोग का हो पाता है फिर हो पाता है. sorted so Arnav what year are you in and what's your branch right now at IIT Goa. I am currently studying in second year, third semester. Okay, And my branch is Mechanical Engineering, that's which great. is like a different branch Yeah, from what other people giving JE think of. okay. So what all branches मतलब क्या क्या offer होता है at IIT Goa. At IIT Goa, we have mainly four branches. First is CSE, Computer Science and Engineering. Then we have MNC, Mathematics and Computing. Then we have EE, Electrical Engineering. And at last, we have Mechanical Engineering. तो स्कूल है मतलब And बस also, yeah. IIT Goa provides MTech and PhD degrees to the students. अच्छा तो मतलब you guys only have like four branches in total और उसके बाद Yeah, उसके अलावा only कुछ four. नहीं है अच्छा that's pretty No, good no, यार no, मतलब nothing. if they're like focus on just like the four branches I think that काफी like बढ़िया quality होगी क्योंकि like four branches offered हो रही है तो I think मतलब faculty वगैरह how Faculty is how's very good. faculty is good मतलब they're just focused on teaching those four branches and like just Yeah, मूविंग फॉरवर्ड तो मतलब रश नहीं है कि यार दस दस बीस चीजें एक साथ भाई ठूस दी उठा के एंड सब करना है not वो वाला सीन ही नहीं है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है. बढ़िया बढ़िया यार अच्छा अर्नव हाउ अबाउट यू गिव अस लाइक एन ओवरव्यू ऑफ लाइक द मैकेनिकल ब्रांच एट आईआईटी गोवा मतलब करिकुलम कैसा है कोर्स वगैरह कैसा है कोर्स लोड वर्क कैसा हो रखा है. Like currently, I just started my second year. First year is all the shared courses. The full year is full of shared courses. तो जितने हमारे भी कोर्सेज रहते हैं वो सारी ब्रांचेस साथ में पढ़ते हैं तो उस टाइम थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहता है कि आप साथ में 150 स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अभी मैं ब्रांच में आ गया हूँ अपनी. अब मेरे सारे ब्रांच कोर्सेज रहेंगे. कोई इलेक्टिव कोर्स शायद मेरा दूसरे ब्रांचेस के साथ क्लैश कर जाए या शेयर्ड कोर्स रहे कुछ ब्रांचेस के साथ तो भी अब मेरा कंपटीशन एज एन एसपीआई बेस्ड और सीपीआई बेस्ड अब मेरा बहुत कम हो जाएगा. अब मुझे उतनी मेहनत नहीं लगेगी. प्लस फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स मैकेनिकल इज अ प्रीटी इजी ब्रांच, a technical and easy branch. The professors here are amazing. Like they connect on a personal level. Everyone knows your name because it's a small campus and small batch size. So it's a full on family, including the professors, the students, the ground staff, the mess staff, and the guards. Everyone is like a family. बढ़िया बढ़िया इट्स वेरी गुड तो मतलब भैया ऐसी सेटिंग रहती है यहाँ भैया 11 बजे के बाद आना जाना है कुछ लेके आना है. भैया 11 बजे के बाद हाँ. बढ़िया बढ़िया इट्स वेरी गुड तो मतलब how did you reach to IIT Goa? Matlab, if anyone wants to like be at IIT Goa, what are like the requirements for like the eligibility? So how can someone like do their exams and how can like someone reach to that position as what you are right now at? Like I started my prep from 11th standard. I got 2 years of coaching from Bhopal for the JEE Mains and JEE Advance. My result through Bhopal was not very good because I was handling my school workload and also the coaching workload. So there was a little bit of resistance. The score was not as good. Then I took a year job from Kota, and yeah, I got a better score from what I did last year, and that's it. So the to reach an IIT level institute, first you have to
get at least 75% in your 12th board exams, which is a bare minimum, then only you are eligible for any of the seats provided by the government colleges. So first is board exam, minimum 75%. Then you have to give your JEE mains. Also, you have to clear the rank cutoff for JEE mains, which is almost like 2.5 lakhs. You have to be in the top 2 or 2.5 lakhs of students, and then you get eligible for JEE Advanced. So then you go for JEE Advanced, which is like one of the toughest papers of India, and you have to clear the individual scores of the subjects and a total score. Then you are eligible to sit in the counseling session for IIT seats, and if you're lucky, you can get one and live the life of IIT. तमाम मतलब अच्छी ऐसी लंबी चौड़ी प्रोसेस हो रखी है कि मतलब पहले यू हैव टू गो प्रिपेयर लाइक फॉर आई डोंट लाइक 2 3 4 5 इवन मोर इयर्स उसके बाद लाइक मेंस देना है फिर एडवांस देना है पहले मेंस क्वालिफाई करो फिर उसके बाद एडवांस मिलेगा फिर एडवांस में Advanced qualifier. लाइक मतलब यू सेइंग दैट द पीपल शुड बी लाइक इन the top 2 to 2.5 lakh in advance, right? Or Yeah, then you are eligible for advanced. okay, then you're eligible for advance. And after that, also from the 2.5 lakh students, the top 20,000 get some seats. अच्छा, Not just all the of top them, 20,000, just the top just 20,000. the top 20,000. Yes, अच्छा, मतलब काफी it's like pretty competitive, right? मतलब very very competitive. very competitive. And that's good, yeah, that's good. So, अच्छा, you were like in 12, then like you gave J like in 2023, and then you took a gap year, Yeah, and gap year. then you went to Kota, and then you Quota. stayed over there. Achha, so what was different in Kota that you weren't getting like in your like school in Bhopal? Like the school was a pretty hectic schedule. I would get up at 6, catch the bus at 7, come back from the school at 2 and 2:30. Then I had to go to coaching I had to leave my house at 3:30. I'll then come back from the coaching like at 9. Then I have to study if I have any work. Then I used to sleep. That was a pretty hectic schedule. Like I couldn't imagine how my week was going. I was just like I was constantly just running from here to there. I had no time to study for myself. लेकिन उसके बाद जब कोटा गया तो like one of the greatest decisions of going कोटा was that my mom went with me. So I had the support there. क्योंकि कोटा के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जो बच्चा अकेला रहता है उसको कोई बताने वाला नहीं रहता कि तू अभी पढ़ ले, तू अभी ये कर Hmm. ले। कम से कम मेरे साथ वो था, मम्मी साथ में थी। तो उतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहा, खाना अच्छा मिला ऑब्वियसली। अगर खाना अच्छा नहीं मिलता तो ध्यान नहीं दे पाते। कोटा में मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मेरी इवनिंग क्लासेस थी। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि क्लासेस मेरी रहे इवनिंग में। तो इवनिंग मेरी 3 to 8 क्लासेस रहती थी। मैं घर आता था, मैं घर पे रात में 1, 2, ढाई बजे तक पढ़ता था। सुबह मैं आराम से उठता था क्योंकि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि अगर मैं स्लीप नहीं लेता हूँ तो मेरा एक्चुअली में दिमाग फंक्शन नहीं करता है। तो मैं स्लीप प्रॉपर लेता था। आई वुड गेट अप एट 10, देन एट 12 आई वुड सिट फॉर स्टडी फॉर लाइक अबाउट 2 hours, then I would go coaching, and that was my pretty schedule in कोटा। कोटा में एक और चीज बहुत अच्छी थी कि जो टीचर्स थे, लाइक मैं जब भोपाल में स्टडी कर रहा था तो टीचर्स मुझे पर्सनल लेवल पे जानते थे। लेकिन वो जो स्टडी में प्रोफेशनलिज्म आता है ना थोड़ा सा, कि जब आप बड़ा बैच साइज पढ़ाते हो तो वो थोड़ा सा फर्क दिखा था। प्लस बीइंग कोटा द मेन कोचिंग सेंटर, वहाँ के टीचर्स की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर थी। और हाँ, काफी प्रोफेशनलिज्म के साथ काफी पर्सनल लेवल पे भी थे कि उतना ज्यादा पर्सनल नहीं थे, लेकिन हाँ काफी पर्सनल इस हिसाब से थे कि अपना मान के बोलते थे। कभी लेक्चर नहीं ले रहे हैं तो बस गाइडेंस ही कर रहे हैं पूरे लेक्चर पर। तो वो सब कोटा में काफी प्रॉपर मिला था। बहुत बहुत बढ़िया मतलब यू आर टेलिंग मी मतलब इट्स लाइक अ बिग जर्नी एंड आई थिंक अगर घर वालों का सपोर्ट रहता है प्रॉपर एंड भाई खाना तो बहुत मेन चीज़ है मतलब आई थिंक डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं एंड आई थिंक कोटा जाके तो काफ़ी रहती है चीज़ें
मतलब खाना हो गया, हाउ यू लिविंग, हॉस्टल लाइफ हो गई, या पीजी रह रहे हो, जो भी हो रखा है वहाँ पे। बाकी मतलब सो वहाँ पे मतलब यू गॉट लाइक द एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म मतलब वहाँ जाके, एंड मतलब एकदम लाइक कोर्स मटेरियल वगैरह लाइक एकदम बढ़िया लगा। was it like better like than भोपाल, या like क्या सीन था कोर्स Yeah, it was मटेरियल का? definitely better than Bhopal. Bhopal comes under the branch category, right? So the main coaching is in Kota. So their main focus is for Kota. Kota annually admits about something like 5 to 7 lakh students per year for the coaching systems. So there is a big batch of people coming every year to Kota. So the quality has to be on mark so that at least half of them qualify for the thing they are preparing for. So they have to be on top of their game. The coaching centers have to be on top of their game to provide the best education. Yeah, that's pretty good. That's pretty good. अच्छा तो मतलब if we talk about how is like the life in Kota मतलब for like like for like an average or like a general student मतलब anyone who goes Kota for the first time, what should they keep in mind, or like how it is like existingly? Like the main thing is if you are like the person, if he's going to Kota for the first time, he's leaving his house for the first time. He'll be open to all the distractions he is seeing. He will be open to all the masti he has to do. Like there will be a lot of distractions. So उस चीज से बचना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग के 1 महीना सर्वाइव कर जाते हो बिना कहीं निकले, सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगे हुए, तो मतलब आपके, अगर आप 2 साल रुक रहे हो, आपके 2 साल बहुत अच्छे चले जाएंगे। अगर आप 1 साल रुक रहे हो तो आपके 1 साल बहुत अच्छा निकल जाएगा। आप जितने भी टाइम को कोटा में रुक रहे हो तो आपका वो टाइम अच्छा निकल जाएगा अगर आपने स्टार्टिंग के 1 या 2 महीना बहुत अच्छे से फोकस किया। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो एक्चुअली में बहुत आसानी से वो टाइम निकल जाता है और आपका रिजल्ट आपकी मेहनत के बारे में खुद बताता है। नहीं, बहुत बहुत सही बात है। मतलब आज की डेट में तो मतलब 18 19 साल के बच्चे भाई कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर में बिगड़ जाते हैं। वहां तो मतलब लोग क्या 15 16 16 17 साल के होते होंगे मतलब जब 15 16। कोटा आते होंगे। और तब अगर लाइक दे गेट डिस्ट्रैक्टेड भाई फिर तो लाइक काइंडा व्हाट यू से मतलब काफी लाइक बड़ा फाउंडेशन स्टेप रहता वेस्ट है, हो राइट? जाता है बेइज्जती हो जाता है। बढ़िया एक्चुअली बढ़िया में। बढ़िया। तो कोटा से आगे बढ़ते हैं, and now let's focus more like on the main part, the cream part, the IIT part, IIT Goa. Okay, यस। so how is the lifestyle at IIT Goa? मतलब कैसा है, मजा आ रहा है, क्या चल रहा है, and कैसा लग रहा है? एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बोला, आईआईटी गोवा इज मोर लाइक अ फैमिली। तो 600 700 लोग की फैमिली है, बड़ी सी। सब साथ में रहते हैं, सब साथ में मस्ती करते हैं। सबके एक दूसरे के साथ इनसाइड जोक्स हैं। सबको पता है क्या करना है, सब साथ में है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की है, कई बार जब आप बाकी आईआईटीज में जाते हो जिनका बैच साइज काफी बड़ा रहता है, जो पर ब्रांच कुछ 100 स्टूडेंट्स एडमिट करते हैं, तो और उनके ब्रांचेस भी ज्यादा रहती है, तो मतलब उनका एक ईयर का बैच साइज ही कुछ 700 800 1000 हो जाता है। तो वहां पे ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि एक सीनियर जूनियर के बीच में एक बाउंड्री हो जाती है कि उतना फ्री इंटरेक्शन नहीं होता। तो गोवा की लाइफस्टाइल में ये बेटर चीज है कि आपका सबके साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन है कि आपको काफी अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। मतलब किसी सीनियर की इंटर्न लगी, उससे पूछ लिया कि भैया व्हाट आर द प्रिपरेशन स्टेप्स फॉर दैट। सो और सब अच्छे से बता देते हैं। बाकी अगर गोवा की लाइफस्टाइल की बात की जाए, काफी चिल लाइफस्टाइल है। बस यहाँ बारिश इतनी ज्यादा तेज होती है कि हर सेमेस्टर का एक छाता जाता है। अच्छा, एक तो साथ चले जाता है। एक छाता चला जाता है हर सेमेस्टर का एक। बढ़िया बढ़िया। तो मतलब आई थिंक काफी बढ़िया वाइब हो रखी है। इट्स लाइक अ काफी टाइट बड़ी। नेट कम्युनिटी, मतलब सब एक दूसरे को जानते हैं। एंड आई थिंक लोग लाइक काफी लाइक दे लाइक अ फैमिली, एंड फैकल्टी वगैरह भी लाइक दे लिव लाइक अ फैमिली। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब लुक्स लाइक अ लाइफ टू बी लिविंग एट। मतलब समटाइम्स आई थिंक the only thing that you need is like a community. Doesn't matter how big or small the community is, but you have a community. Matlab, you know people, people know you, and you are just in that environment matlab, where you can just like like focus on just thriving. Matlab, बस आगे बढ़ते रहो and like just going as high as you can get.
without like much distractions. So distraction. What are the distractions at Goa? Well, it's Goa. What are the distractions Yeah, at it's Goa. Goa? Yeah. Like the main distraction is Goa. Main distraction in Goa is actually the drug culture. So like, don't try to get in that. The good thing about our campus is it's like very far away from all the beaches. Like the minimum distance beach is like 30 kilometers. You have to catch a bus, 2 hours travel. If you don't have a license, if you have a license, first you have to take a rental. That is costly. So the distractions is mainly the bad thing about Goa is the culture and the mafia culture. If you are far away from that, your life will be good enough. Like स्मॉल अमाउंट में लेकर तो चलता है यार, थोड़ा तो लूज कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ प्रेशर कई बार आ ही जाएगा, उसके लिए कभी जरूरत पड़ जाएगी. नहीं, बढ़िया बढ़िया. तो मतलब क्या कैंपस पे कुछ लाइक ड्रग वगैरह के लाइक कुछ लाइक इम्पोज कर रखे है कि भाई यू कैन ड्रिंक इट ऑन कैंपस, यू कैन लाइक गेट लाइक लिकर और समथिंग लाइक या दैट ऑन कैंपस, या मतलब क्या सीन है? मतलब आई थिंक अलाउड तो वैसे नहीं रहता कैंपसेस पे लाइक राइट लिकर एंड ऑल दैट इन इंडिया, बट मतलब क्या सीन है मतलब आईआईटी गोवा का? मतलब डू दे हैव लाइक अ स्पेशल पॉलिसी कि भाई यू कैन लाइक लाइक बी इन द पोजीशन ऑफ drugs or something like that, or how it is over there? या यू कांट ब्रिंग एनीथिंग इनसाइड, लाइक दैट इज ऑन पेपर, यू कांट ब्रिंग एनीथिंग ऑन इनसाइड. लाइक फिर उसके बाद स्मगलिंग तो होती है ऑब्वियसली. लेकिन हाँ, काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है गोवा के. सिर्फ लिकर के लिए भी नहीं, एंटी रैगिंग बहुत काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है. मतलब गोवा इन इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ like 9 years, there hasn't been a case of any खतरनाक वाली रैगिंग. There hasn't been any case. So like the restrictions are there to keep us safe and to keep anyone who doesn't indulge in these activities safe. So that is why the rules are there. नहीं, बढ़िया बढ़िया. आई थिंक दैट्स लाइक प्रीटी गुड थिंग व्हिच लाइक मतलब कॉलेज में रहता ही है, और इसमें और बढ़िया कि मतलब ये नहीं हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब घर वाले भी सुनते हैं कि यार आईआईटी हो गया, फिर आईआईटी की भाई ब्रांचेस भर रहे हो और फिर चूज कर रहे हो और फिर वहां निकलता है भाई आईआईटी गोवा, तो घर वालों के दिमाग में पहली चीज आती होगी गोवा. अरे नहीं, भाई. मेरे मेरे घर पे ऐसा नहीं था. मेरे पापा ने अच्छा. बोला तू गोवा जा, मैं खुद घूमने आऊंगा. ये बढ़िया बढ़िया है. नहीं यार, वो तो बहुत सही है. मतलब अगर हाउस पर काफी लोग मैंने देख रखे हैं इस टाइप के, तो उनको भी लगता है यार हाँ. बच्चा जाएगा बिगड़ बिगड़ जाएगा, फिर मतलब वही लाइक सुबह शाम बस. Goa is Goa is still considered as a taboo in our country. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. मतलब इट हैज ऑलवेज बीन लाइक अ टैबू, आई वुड से. मतलब लोग जाते हैं बट घर वालों को लाइक भाई बनाने के लिए यार गोवा का ट्रिप जाना हाँ. है. नहीं, सीन हो रखा है जगह सा. अच्छा, तो व्हाट्स लाइक द लिविंग ओवर देयर? मतलब क्या हॉस्टल हो रखे हैं या पीजी हो रखा है या क्या सीन है मतलब रहने का कैंपस पे? Every IIT system in India, there it is compulsory for all the students to live in the hostel. तो हमारे अभी हम हॉस्टल में रहते हैं. हमारा डबल शेयरिंग एक रूम है. हमारे जो कैंपस है तो उसमें हमारे 3 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के, एक है गर्ल्स हॉस्टल, और हॉस्टल से लगा हुआ मेस है हमारा. और इन सब के बीच में हमारा मेन बास्केटबॉल कोर्ट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हम करवाते हैं. एक्चुअली हमारा मेन कैंपस अभी है नहीं, क्योंकि गोवा गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट्स फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन. सो वी कांट acquire a land for making our actual hard on campus. So we are currently residing in a shared campus with Goa Engineering College. We have a separate area for our hostels, and we are sharing the classrooms with Goa, and we have a separate office for our uh, administration. अच्छा अच्छा अच्छा. तो मतलब ये सिंह कि भाई रेशियो वहां पे भी 3:1 हो रखा है, मतलब वहां भी फक्ड अप 3 is सीन to है. 1, obviously, man. 3 is to 1. The ratio is always bad. The ratio is always bad. You can't improve that. नहीं मतलब from your branch I understood that when you told me that you're doing mechanical, but still मतलब क्या सीन है? मतलब क्या बंदियां मैकेनिकल में है या बंदियां कौन सी ब्रांचेस में ज्यादा बंदियां हैं मैकेनिकल में. अगर 30 का बैच है तो लाइक 7 और 8 बंदियां होंगी है? मैकेनिकल अच्छा में. उससे अच्छा ज्यादा नहीं, अच्छा. उससे ज्यादा नहीं जाती. अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर जो एक हाँ, हॉस्टल है लाइक. एग्जैक्ट हमारे
हमारे बैच का एग्जैक्ट रेशियो 1:3 है, मतलब 100 लड़के 33 लड़कियां हैं। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड गेस था, 3:1 रेशियो। तो अच्छा, थ्री इज मतलब टू क्या वन क्या सीन है फिर, कौन से ब्रांच में ज्यादा बंदी है, मतलब एज कम्पेयर टू मतलब मैकेनिकल? CS ऑब्वियसली CS भाई। अच्छा मतलब। CS का हर 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 कॉलेज में CS का बैच साइज भी ज्यादा रहता है। तो हाँ, जितना ज्यादा एडमिट करेंगे उतनी ज्यादा बंदियां भी आ जाएंगी। नहीं भैया, आज की डेट में आई थिंक सबको सीएस ही चाहिए, मतलब हर तीसरा बंदा, इफ यू हाँ, सी दैट पर्सन भाई, उसके पास बीटेक सीएस में तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद तो CS पता में नहीं रहेगा हाँ। कुछ भी जॉब कर रहा है वो आजकल। तो भाई मैंने जो देख रखा है कि यार, मतलब आई एम सीइंग लाइक पिछले 5 साल से, आई थिंक जितने भी लोग हैं उन उनने डिग्री लाइक मैकेनिकल में कर रखी है, इलेक्ट्रिकल में कर रखी है, किसी में भी की हो, एट द एंड ऑफ द डे जाके अगले 5 साल में भाई वो तुम्हें बैंगलोर में आईटी सेक्टर में काम करते दिख IT जाएंगे। सेक्टर हाँ। अब पैसा क्या भाई वहीं पे है क्या आजकल? वही वहीं पे है आजकल, क्योंकि बाकी चीज में मेहनत है। बाकी चीजों में डबल मेहनत है। मेहनत है। कोर कोर स्टडीज में काफी मेहनत है। कोर स्टडीज में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी इंटर्नशिप उतनी इजीली नहीं लगती है। हम्म। आपके प्रोजेक्ट उतने इजी नहीं रहते, काफी रिगरस प्रोजेक्ट्स रहते हैं, क्योंकि इन मैकेनिकल आप एक वर्किंग मशीन या वर्किंग कुछ बना रहे हो, जिसका आपके पास या आपके प्रोफेसर के पास एक्चुअली में कई बार कुछ आइडिया रहता नहीं है। तो आप दोनों ही साथ में बैठ के, आपकी जो भी टीम रहेगी, आप साथ में बैठ के खुद ही फिगर आउट कर रहे हो, खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद ही बना रहे हो। तो हाँ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स काफी डिफिकल्ट रहते हैं। तो मतलब डोंट यू थिंक कि अगर जितने लोग हैं, अगर जो सारी भीड़ हो रखी है, अगर सारी भीड़ लाइक सीएस के पीछे भाग रही है, आईटी जॉब्स के पीछे भाग रही है, तो मतलब डोंट यू थिंक दैट मतलब देयर इज लाइक लेस कंपटीशन, क्योंकि भाई सब लोग तो आईटी सेक्टर के पीछे भाग रहे हैं, तो कंपटीशन जो हमारे एक्चुअल फील्ड है, जैसे मैकेनिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, तो उसमें तो लाइक whoever is like like above average they will get like a good job, right? Because मतलब लोग ही नहीं काम करने के यार, सब लोग तो भाई उसमें भाग रखे हैं। तो लाइक डू यू हैव दैट मतलब टॉक विथ योर मतलब बैचमेट्स एंड लाइक सीनियर्स की, यार आगे 5 साल 4 साल में क्या करना, मतलब जो ब्रांच अभी मिल रखी है उसमें रहना है, या फिर एट द एंड ऑफ द डे जाके मतलब सीएस या आईटी के साइड स्विच ही करना है? लाइक द माई माइंड इज क्लियर अबाउट दैट कि अभी मुझे कोर ही करना है। आई वॉन्ट टू बी इन द मैकेनिकल सेक्टर बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर। हम्म। You are working with machines, you are making something like that appeases me very much. And from what I've heard, from what I've talked with my seniors and the faculty members, they have told me like take the third semester fully, do both things, core and non core, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारे इतने कोर्सेज नहीं थे कोर के। तो जो मेरे फैकल्टी एडवाइजर है उन्होंने मुझे यही बोला कि ये सेमेस्टर एक्सपेरिमेंट कर ले, जो भी करना है। अभी मेरे पास कोर मेरे सब्जेक्ट्स हैं, वो स्टडी कर। अगर तुझे नॉन कोर भी साथ में करना है तो डू कोडिंग, लर्न डीएसए और मशीन लर्निंग और एआई, ये कर। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर तुझे भी क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। उसके हिसाब से फिर आगे का बचे हुए 2.5 years प्लान कर। फिर अगर कोर में काफी ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर वहीं लग जा, फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जहां नहीं, जाना है वहां जाओ, पीछे नहीं देखना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक मतलब दैट्स अ प्रीटी गुड एडवाइस। मतलब आई थिंक जो कर रहे हो उसको उड़ा के चलो। वैसे लाइक मार्केट इतना सैचुरेटेड हो रखा है कि भाई सबको टेक फील्ड में जाना है। आई थिंक या अगर लोग लाइक दे कैन जस्ट लाइक डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, और जिसमें भाई लाइक यू आर द बेस्ट, इफ यू लाइक दैट थिंग, जनरली भाई मजा आ रहा है काम करने में, आई थिंक समवन शुड डू दैट। हो सकता है भाई पैसे उतने नहीं मिले जितने लाइक आईटी में मिल जाए, क्योंकि भाई वहां तो फिर कंपनी उतने बना भी रही है, राइट? मैकेनिकल हाँ, मतलब पैसे तो हर जगह बन रहे हैं, आई थिंक पैसे हर लेकिन जगह बन रहे एक हैं। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन इम्पोर्टेंट है यार, आई थिंक कुछ भी करो जिंदगी में आप, इफ यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन, और फिर डजंट मैटर भाई बहुत पैसा है कम पैसा, मटेरियलिज्म तो हर जगह चल रही है यार, कि यार गाड़ियां चाहिए, बंगले चाहिए, बढ़िया चार्टर्ड में उड़ना है। सबको इजी इजी वे चाहिए है, सब कोई हर कोई हार्ड वे नहीं लेना चाह रहा। इजी भी चाहिए यार, इजी भी चाहिए, दैट्स ट्रू। अच्छा, तो इजी से सुन के लाइक व्हाट्स अप विद लेजर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स एट आईआईटी गोवा, मतलब क्या सीन हो रखा है Extra उनका? curriculars, oh yes, the very exciting part of IIT Goa. I am also in the student council. I am currently at the position of media secretary. So I handle the photography, the filmmaking, and the graphic design of the IIT Goa. तो मतलब मेरे अंडर में 2 क्लब्स हैं,
मेरे सेम लेवल पे 3 और सेक्रेटरीज हैं. वन इज द इवेंट मैनेजर, one is literary secretary, and one is art secretary. Like these guys have, the literary and the art secretary have three uh, clubs under them. For literary there is oratory clubs and acting or theater. For arts there is dance, painting and music. और जो हमारे यहाँ की कल्चरल्स है वो काफ़ी वास्ट है. मतलब फॉर अ स्मॉल बैच साइज वी कैन होल्ड अवर फोर्ट इन वॉट एवर कॉम्पिटिशन वी गो. लास्ट ईयर 2024 दिसंबर हमारा कंटिजेंट गया था आई टी गोवा का कंटिजेंट गया था इंटर आई टी कल्चरल्स मीट में. तो वहाँ पे हमारी जो फिल्म मेकिंग टीम थी उसको एक स्पेशल मेंशन मिला, प्लस 5th प्लेस पे आया वो, कंपीटिंग विथ ऑल ऑफ द बिग आईआईटीज. हम अगर कंपेयर करें, वो लोग अपने बड़े बड़े कैमरास लाए, पूरा साउंड बार वगैरह सब कुछ उनके पास था, माइक्स वगैरह थे. हमारी जो जितनी मेन शूट हुई वो हम लोग ने गूगल पिक्सल के कैमरा पे शूट किया, गूगल पिक्सल के फोन पे शूट किया. हम लोग को 5th प्लेस मिला, हम लोग को स्पेशल मेंशन मिला. तो जितनी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जितनी भी हमारी टीम्स है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, क्योंकि हम एक्चुअली में बहुत अच्छा करना चाहते हैं. प्लस लास्ट अभी फेब में मैं भी गया था. फेब में अभी हम लोग आईआईटी धारवाड़ गए थे, तो वहाँ पे भी हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा. मतलब जो हमारा भी फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग वाला साइड है वो काफ़ी स्ट्रांग है. हमारा फोटे है जो हम मेन डिस्प्ले कर सकते हैं बाकी जगह जाके. तो वहाँ पे हमारा पूरा पोडियम स्वीप था फोटोग्राफी में. फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज वाज ours. For the advertisement making we were the third prize. So like culturals is good enough in our college. Everyone is thriving for it. Everyone is working even more harder to get even better. ऑन द स्पोर्ट्स साइड, स्पोर्ट्स में हमारा लिमिटेशन मेन ये हो जाता है कि ड्यू टू द हैवी रेन्स जितने भी आउटसाइड स्पोर्ट्स रहते हैं तो वो उतने ग्रो नहीं कर पाते हैं. जो हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड है, जो हमारा बास्केटबॉल है, तो 2 महीने की बारिश में उन पे वो एल्गी इतनी जम जाती है कि आप उस पर चल नहीं सकते. तो स्पोर्ट्स हमारी जो मेन प्रैक्टिस होती है वो हमारी इवन सेमेस्टर्स में होती है समर के टाइम पे, क्योंकि तब प्योर धूप है, एल्गी वगैरह नहीं आना, बारिश नहीं होनी है, उसी टाइम पे क्लीनिंग प्रॉपर हो पाएगी. तो हाँ, थोड़ी फैसिलिटीज की वजह से स्पोर्ट्स हमारा सेक्टर थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं कि और बेटर कर पाएं और आगे बढ़ पाएं. नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मतलब looks like काफी कुछ चल रहा है एक साथ में, तो like but बहुत बढ़िया यार. I also have a Pixel, but it has like a pretty good camera. तो भाई just like you know, it's like a kid strategy. Keep it simple, stupid. और at the end भाई nothing fancy. काम होना चाहिए, काम हो रहा है तो I think that's what काम matters, होना right? चाहिए. नहीं, बढ़िया बढ़िया यार. तो मतलब क्या बारिश होती रहती है गोवा में, मतलब चलती रहती है पूरे 12 महीने हाँ. ऐसा? अच्छा, बढ़िया बढ़िया यार. तो मतलब what does like a weekend look like as like a IIT Goa student in Goa? A long weekend is generally कि बस पकड़ो, पणजी पहुंचो, रेंटल पे गाड़ी लो, कॉलेज आ जाओ, अगले दिन निकल जाओ गाड़ी लेके सुबह से. सिंपल एज दैट. कहीं भी निकल जाओ गाड़ी लेके. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट गोवा. छोटी सी जगह है, छोटा सा स्टेट है, जहां भी जाना है पहुंच जाओ. हर जगह कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मिल ही जाएगा एक्चुअली में. जो हमारे जनरल स्मॉल वीकेंड्स रहते हैं, जैसे आज का हो गया, तो उसमें हम जनरली ट्राई करते हैं कि कुछ बैकलॉग वगैरह है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ असाइनमेंट्स हैं, वो कंप्लीट कर लें, या रूम पर बैठ के ही कुछ सीखना है, लेक्चर्स देख लें, वही सब रहता है. बढ़िया बढ़िया. मतलब वीकेंड भी एकदम फन होता है गोवा में रहने का, लाइक हाँ, another फन होता perk. है. another perk of Goa. मतलब कल्चर किस टाइप का है? मतलब कैंपस तो हमें कल्चर देख रहा है कि वो लाइक इट्स प्रीटी टाइट नेट, लोग काफी बढ़िया है, क्लोज हैं, वाइब बढ़िया है. व्हाट्स लाइक द कल्चर इन जनरल? मतलब गोवा में घूमने जाते हो, क्या दिखता है मतलब? गोवा बहुत ओपन जगह है. मतलब वहाँ यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, क्योंकि गोवा स्टार्टिंग से ही हमेशा एक टूरिस्ट प्लेस रहा है, टूरिस्ट स्टेट रहा है.
तो लोग भी फिर उस हिसाब से ही हेल्पिंग हो गए हैं कि हाँ मतलब ये शायद घूमने आया है, शायद यहीं रहता है, एनीथिंग, तो इसकी हेल्प कर दो। एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट हियर इज वेरी सपोर्टिव, लाइक जितने भी आप पुलिस ऑफिसर्स देखेंगे वो काफी सपोर्टिंग रहते हैं यहाँ के, सब हेल्प करने में लगे रहते हैं। तो एक टूरिस्ट प्लेस में रहने का यही फायदा रहता है कि लोग बहुत सपोर्टिंग हो जाते हैं, वो जगह की वाइब काफी अच्छी आती है। और प्लस गोवा है तो लाइक गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल सीनिक प्लेस, तो कहीं भी जाओ मजा ही आना है। बढ़िया बढ़िया, मतलब एकदम सॉर्टेड हो रखा है कल्चर भी वहाँ का। तो भाई हाँ खाना कैसा है वहाँ का? मतलब कोटा में तो खाना देख लिया कि मतलब इफ यू हैव समवन हु कैन कुक फॉर यू, तो भाई ना ना, खाना मेन कोटा में चीज है। आप सरवाइव नहीं कर सकते मेस के खाने में। अच्छा ऐसा है क्या? कोटा में नहीं कर सकते आप, कोटा के हॉस्टल्स का खाना मैंने खाया, आप नहीं कर सकते सरवाइव। अच्छा, तो भाई यहाँ पे कैसे है ना आईआईटी गोवा में, मतलब मैच यहाँ हो पे रखा है। डिसेंट खाना है, डिसेंट खाना है, जितनी मेस को बुराई दी जाती है उतनी नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? जितनी भी जगह की मेसेस, जितनी भी जो भी कॉलेज वाले अपनी मेस को बुराई करते हैं, भाई तुम आईआईटी को आके खा लो, इतना डिसेंट खाना है ना, मतलब अच्छा है। उतना जितना डिमीन किया जाता है मेस को उतना नहीं है। मतलब अच्छा है, मतलब स्टैंडर्ड बन रखा है। और हाँ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है। क्या मतलब कैसे रहा, वेज नॉन वेज डेली रहता है या वेज लाइक? नॉन वेज सब मिलता है, अलग बढ़िया अलग है। रहता है, मिलता है। फिर तो गोवा के साइड है तो क्या मतलब क्या सी फूड ज्यादा होता होगा या सी फूड वगैरह कम नहीं रहता नहीं है? नहीं, सी फूड एक्चुअली आप बाहर जाओगे तो आपको मिलेगा, लेकिन हॉस्टल में जनरली कोशिश करते हैं कि चिकन तक ही रखें। अच्छा ऐसा है बाकी क्या? नहीं, गोवा इज फुल ऑफ सी फूड। बढ़िया बढ़िया। आई थिंक लोग उसके लिए जाते हैं वहां, तो भाई मतलब लाइन है हाँ ऑक्टोपस एंड ऑल दैट। एंड काफी दोस्त हैं हाँ हाँ जा रखे हैं, वो बोलते हैं यार इफ यू गो टू गोवा ऑक्टोपस वगैरह ट्राई करो, एंड जस्ट लाइक हाँ हाँ हाँ। ट्राई सी फूड यार। मतलब आई हैव सम फ्रेंड्स दे आर लाइक हार्डकोर सी फूड लवर्स, तो भाई वो तो एकदम जाते हैं एंड जो गोवा की भी सबसे खाते हैं। फेमस चलती है कोंकणी फिश थाली। अच्छा कोंकणी फिश थाली यहाँ गोवा की सबसे फेमस है, कई कई जगह की अच्छी मिलती है। एक्चुअली मैं पर्सनली खाता भी नहीं हूँ, लाइक आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो अच्छा। लेकिन मुझे, ओके। लेकिन मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ तो आई डोंट माइंड कि वो मेरे सामने बैठ के खा रहे हैं, मैं चिल हूँ, तो मतलब वही लोग से सुनने को मिलता है कि भाई ये चीज ये बढ़िया है, ये चीज वो बढ़िया है। नहीं बढ़िया बढ़िया है, मतलब गोवा में जाके अगर खोलोगे नहीं तो फिर कहीं खोलोगे यार। नहीं नहीं नहीं, नहीं बढ़िया एक्चुअली बढ़िया। तो इट्स प्रीटी गुड यार, लुक्स लाइक यू आर लाइक एंजॉयिंग योर लाइफ इन गोवा और सब बढ़िया चल रहा है। तो आईआईटीज में मतलब स्पेशली गोवा क्या सीन है, मतलब अपना प्लेसमेंट्स एंड ऑल का, मतलब इन फ्यूचर ऑन कैंपस प्लेसमेंट प्लेसमेंट? आईआईटी गोवा का, IIT Goa is a tier 3 college, tier 3 IIT, which is one of the recently opened. 9 9 years हो चुके हैं खुले हुए, 6 कॉन्वोकेशंस हो चुके हैं, 5 और 6 कॉन्वोकेशंस हो चुके हैं, मतलब 5 6 बैचेस यहाँ से पास हो चुके हैं। तो यहाँ का प्लेसमेंट कल्चर, प्लेसमेंट इज मोर देन 90%। इस ईयर का शायद तक 96% था। सबकी प्लेसमेंट लग जा रही है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब कोशिश ये करते हैं कि बेटर से बेटर हो, तो कई लोग प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं तो आउटसाइड सोर्सेज से ले लेते हैं। पीपीओ यहाँ पे मिल जाता है लोगों को। अभी हमारे 2 सीनियर्स अभी फोर्थ ईयर में, करंटली जो फोर्थ ईयर में आए हैं, तो उनकी, दो नहीं एक्चुअली 5 सीनियर्स हमारे, जिनकी अभी गूगल में इंटर्नशिप थी, 2 मंथ इंटर्नशिप उनने पूरी की, यहाँ पे आए हैं वापस। तो हाँ मतलब एज सच प्रेशर वाली बात नहीं है, इफ़ यू आर द बेस्ट, इफ़ यू आर द टॉप ऑफ द क्लास, आप निकल जाओगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा बॉटम पे रह गए, अगर आप टॉप 50% में नहीं हो आपकी क्लास में, तो हाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, तो बस वही रहता है। नहीं बढ़िया, इट्स प्रीटी गुड, मतलब प्लेसमेंट का सही ठीक ठाक हो रखा है। फिर आई थिंक आईआईटी का प्लेसमेंट ब्रांड है, सीरीज। तो आईआईटी का ब्रांड तो भाई आईआईटी का ब्रांड ही है। तो अच्छा, मतलब क्या आईआईटीज में भी क्या टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 चलता है? There is a tier system in IITs. The tier 1 are the main 7 IITs, the main old 7 IITs. Tier 2 जो 2000s में जो ओपन हुए वो हैं, और जो टीयर 3 है वो 2014 से लेकर 2017 में जितने ओपन हुए वो हुए। अच्छा, तो मतलब गोवा क्या अभी रिसेंटली खुल रखा है पिछले लाइक 10 साल में, तो हाँ रिलेटिवली न्यू हाँ, गोवा कैंपस। हैज completed its 9 years। 9 इयर्स प्री गुड है, मतलब बस अभी चालू ही हो रखा है वो, तो मतलब जस्ट बढ़िया चालू ही हुआ है। बढ़िया। अभी तो लॉन्ग वे टू गो, मतलब बॉम्बे वगैरह तो भाई क्या अराउंड 1960 65 से हो रखे हैं वो हाँ तो। उनको हाँ, तो अच्छे 60 से। 70 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, प्रीटी गुड। बाकी
what's like your fee structure like at IIT? So like if someone attends like IIT, क्या scholarship मिलती है, scholarship नहीं मिलती है, या like what's like the thing देयर like? इज अ हाँ देयर इज अ कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप, मतलब वो मेन जो आपकी एकेडमिक फीस रहती है उसमें जो द एकेडमिक फीस इज 1 लाख पर सेमेस्टर, विच इज लाइक वेरी लो। उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो वो काफ़ी कम हो जाता है एज अ जनरल स्टूडेंट। अगर आप अपने एक्सपेंसेस सब मिला लो, लाइक अगर आप मंथ के 5,000 खर्च कर रहे हो, तो आप अगर 4 साल बाद निकलोगे तो आपका लाइक सिर्फ यहाँ की फीस देने का 10 लैक्स, 1 लाख आप अगर लैपटॉप खरीद रहे हो वो हो गया, 3-4 लाख गिन लो तो आप आईआईटी सिस्टम से निकलते निकलते आपका 15 लाख में एजुकेशन 4 साल का पूरा हो जाएगा। भाई it's pretty good यार। तो मतलब ये क्या बस IIT गोवा में है कि like you just spending नहीं नहीं, like सब जगह सब मतलब जगह। 10 लाख में in like 10 lakhs you can like graduate from any IIT? यस। Pretty much worth it यार। मतलब मैं देख रहा हूँ काफी लोग हैं like अभी भी जॉब like एडमिशन ले रहे हैं and all that। भाई उनको तो like 16 लाख 20 लाख like क्या क्या हो रखा है इंडिया में। एसआरएम हो दैट गया। उनको एडमिशन फीस अलग से देनी पड़ रही होती। मुझे अच्छा। वो कुछ नहीं देना पड़ता, मुझे बस एक एग्जाम देना, मुझे क्लियर करना, मैं यहाँ सस्ते में पढ़ के निकल जाऊंगा, तो मतलब प्लस ब्रांड टैग लग जाएगा। बढ़िया बढ़िया है। मतलब प्रोज एंड कॉन्स मतलब अपने अपनी जगह है। आई थिंक पर्क्स भी हाँ। भाई फिर काफी बढ़िया है। तो मतलब जो इतने साल भाई घिसा बैठ के, जो इतने साल लाइक ऑल नाइटर्स दैट यू नो लाइक समवन पुल्ड, रात भर जाग के भाई एकदम लगे रहे, उसके बाद आई थिंक जस्ट लाइक द पर्क दैट यू गेटिंग वन ऑफ देम कि यार you're just paying 10 lakhs, you're like at like a pretty good institution, भाई बढ़िया लोग हैं and मतलब pretty amazing man, like it's interesting to like in 10 lakhs you're getting like a quality education, क्योंकि आज के में like I would say quality is a joke, मतलब लोग क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं तो भाई सबको लाइक क्या भीड़ में काम करना है। अब भाई कितने लोग हैं अपने बैच से भी लाइक स्कूल में लाइक वीआईटी में हो हम्म। रखे हैं, एसआरएम में हो रखे हैं, उनका वही चल रहा है मतलब लगे हुए हैं भाई बस, और 200-300 लोग के साथ सेम सीएस बैच में। इस साल शायद तक वीआईटी ने कुछ 1,000 स्टूडेंट सिर्फ सीएस के लिए एडमिट किए हैं। सीएस के लिए 1000? सिर्फ सीएस के लिए, मतलब सीएस में उसमें स्पेशलाइजेशंस आ जाते हैं विद एमएल विद एआई, वो सब वगैरह, अब तो साइबर काफी कुछ, सिक्योरिटी। अब तो काफी कुछ चालू कर दिया, एआईएमएल बहुत हो बहुत गया। बहुत एक्सपेरिमेंटल हो गया अब ये फील्ड। मतलब वैसे ही लाइक हो रखा कुछ नीड है नहीं, बस एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा एडमिट कर पाए। है। तो आईटी सिस्टम में वो नहीं रहता, वो अच्छी बात है कि एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होएगा आपके ऊपर। तो अच्छा 10 लाख में क्या हॉस्टल भी इंक्लूडेड रहता है अपना कि भाई हॉस्टल सब वगैरह सब एवरीथिंग? सब 10 लाख में हॉस्टल मेस सब इंक्लूडेड। भाई pretty good यार। मतलब anyone like who wants to hear this thing, भाई if you get into like IIT I think that's like the best thing you can get, because बेस्ट बेस्ट। from my personal experience I can tell you that like colleges can be pretty expensive. अब इंजीनियरिंग में तो भाई प्राइवेट तो हो रखे जो प्राइवेट हो रखे हैं, बट अगर सरकारी मिल रहा है भाई एज लाइक समथिंग लाइक आईआईटी इट्स प्रीटी गुड। बाकी फिर मतलब एमबीबीएस में तो वही है भाई, मतलब नीट से हो गया तो हो गया, नहीं तो लोग तो भाई नीट से हो डेढ़ गया तो हो करोड़ गया, वरना कहीं कहीं नहीं जा सकते। 1 करोड़ 2 करोड़ में लोग सीटी खरीद रहे हैं प्राइवेट किया। ऑब्वियसली वहाँ वहाँ मेरिट बेस्ड नहीं रहता, फिर वहाँ मनी बेस्ड रहता है। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली मुझे एक्चुअली में वो सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं आता। एग्जैक्टली। अच्छा तो हाउ इज योर रूटीन एट आईआईटी गोवा? मतलब क्या रूटीन है मतलब एज लाइक अ सेकंड ईयर स्टूडेंट? एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट हमारा काफ़ी इजी गोइंग रूटीन है कंपेयर टू द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर हमारी सुबह 9 to 6 क्लासेस रहती थी, लाइक रेगुलर, बीच में 1 or 2 आवर ब्रेक फॉर द लंच। तो वो 9 to 6 रहती थी। अभी काफ़ी इजी गोइंग है, हमारी 8 to 1 रहती है, मॉर्निंग 8 to 1, उसमें भी कभी रही कभी नहीं रही। तो 8 to 1 में मुश्किल से 3 से 4 क्लासेस लगती होंगी, प्लस 2 दिन हमारी लैब रहती है, 3 to 6 3 hour लैब, विच इज़ अ मैंडेटरी, क्योंकि लैब एक्सपीरियंस भी चाहिए रहता है हमारी ब्रांचेस में। हर ब्रांच में लैब एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, वही है बस। तो मतलब उसके बाद बाकी करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, जिम, डांस प्रैक्टिसेस, एडिटिंग्स, शूटिंग्स, वही सब। बढ़िया बढ़िया। तो मतलब अपना क्या जो एग्जाम्स रहते हैं जो अपने लाइक बाकी लैब्स रहती है, तो हाउस लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ दैट, मतलब क्या क्या रहता है उसमें? लैब्स आर इवैल्यूएशन बेस्ड, तो लाइक आपको बता दिया जाएगा कि आप आज ये एक्सपेरिमेंट करोगे, मतलब वीक का वो आ जाएगा। उसके पहले आपको एक लैब रिपोर्ट बनानी है, आप लैब रिपोर्ट बनाओ, आप लैब पे आओ,
लैब पे आप एक्सपेरिमेंट्स करो, आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा, अगले लैब से पहले आपको वो लैब रिपोर्ट कंप्लीट करके सबमिट करनी रहेगी। प्लस टीएज रहेंगे आपके साथ हेल्प करने को, आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और बस इवैल्यूएशन उसी बेस पे होगा। लास्ट में वाइवा होगा और रिटर्न एग्जाम होगा, तो उसका 50% वेटेज है और 50% लैब का वेटेज है। अच्छा, तो अपना क्या मतलब क्यूमुलेटिव चलता है कि मतलब जो सेम के स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो वो सेम के एंड तक क्या मतलब जुड़ता जाता है, कम्प्लीट होता जाता है, या लाइक अगर आपने लाइक पूरा सेम नहीं पढ़ा हाँ स्टार्टिंग में और बस आपने लाइक लास्ट में एग्जाम दे लिया स्टिल मतलब आप सेम पास कर जाओगे मतलब गुड जीपीए, तो मतलब क्या हो रहा हाँ, है हो कैसे? जाएगा, हो जाएगा। मतलब टोटल क्यूमुलेटिव नहीं है? देयर इज अ नीड ऑफ अ टोटल, अच्छा। मतलब आपको टोटल में आपको बेयर मिनिमम पास करना है बस। अच्छा, बेर मिनिमम पास करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो सेम का फर्स्ट हाफ है यू हैव टू परफॉर्म गुड ऑन दैट एज वेल अलोंग विद द सेकंड हाफ, मतलब बस लास्ट में करना है? दैट इज फॉर द कोर्सेज जिसमें मल्टीपल प्रोफेसर्स आ रहे हैं। लास्ट सेमेस्टर हमारा एक कोर्स था जिसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द सेम मिड सेम के पहले एक अलग प्रोफेसर थे, सेकंड हाफ में अलग प्रोफेसर थे। तो उस वाले कोर्स में नेसेसरी रहता है कि आप दोनों पार्ट्स में अच्छा स्कोर करो, दोनों के इंडिविजुअली में, दोनों कोर्स में इंडिविजुअली में पास हो जाओ, तो उसमें रहता है। लेकिन अगर आपका सिंगल फुल सेमेस्टर कोर्स है, आपका एक ही इंस्ट्रक्टर है, एक ही प्रोफेसर है, तो उसमें आपको टोटल में बस पासिंग लाना है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ कोर्सेज में लाइक आखिर में आप पढ़ लो ही विल एस, मतलब बढ़िया आपका हो जाएगा रिजल्ट वगैरह। बट कुछ में आपको लाइक शुरू से लाइक फर्स्ट हाफ में भी बढ़िया परफॉर्म करना है और सेकंड हाफ में भी आपको बढ़िया परफॉर्म करना सेकंड है। हाफ में भी बहुत बहुत बढ़िया है। और रिसर्च का क्या सीन है, मतलब हाउ इज द रिसर्च एट लाइक आईआईटी गोवा, मतलब लोगों में रिसर्च, क्रेज है, क्या सीन है? हाँ है काफी क्रेज है। मतलब जनरली सेकंड थर्ड ईयर से हम लोग प्रोफेसर्स के अंडर प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। प्लस रिसर्च स्कॉलर्स, हमारा टाई अप एक्चुअली फ्रांस की किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ है, तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते हैं। अभी हमारे ऑन कैंपस एक बंदा आया फ्रांस से, वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज के लिए यहीं पे है। इस सेमेस्टर शायद रहेगा, शायद अगले भी रहेगा। तो हाँ, रिसर्च वगैरह चलता रहता है। लास्ट ईयर हमारी रिसर्च में 2 जर्मन वर्कशॉप्स हुई थी। तो हाँ, रिसर्च कल्चर यहाँ का अच्छा है। तो मतलब क्या गेस्ट लेक्चर वगैरह आते रहते हैं, मतलब क्या बाहर से लोग प्रोफेसर आते रहते हैं, तो मतलब क्या जर्मनी से यू सेइंग कि जर्मनी से कोई आता है एंड लाइक हाँ, द जर्मन पीपल दे गिव लाइक अ गेस्ट लेक्चर? लाइक आई हैव नो कंफर्मेशन ऑफ दैट, बट मतलब मुझे एक्चुअली में सही में आइडिया नहीं है कि वो ऑनलाइन थी कि ऑफलाइन थी, लेकिन हाँ, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं हमारे। बढ़िया बढ़िया। और इवेंट्स और फेस्ट के कैसे ना, मतलब जैसे मैंने देख रखा है कि भाई आईआईटी रुड़की में सुनीति चौहान आ रही है एंड लाइक बड़े बड़े सिंगर आते रहते हैं, तो आईआईटी गोवा में कैसे ना मतलब? आईआईटी हुआ का फेस्ट उतना ओवर द टॉप तो नहीं है, लेकिन हाँ, फेस्ट में मजा आता है। थोड़ा स्केल डाउन वर्जन है फेस्ट का। लास्ट ईयर कॉन्सर्ट में हमारे यहाँ अभी जो हुआ था जैन में, उसमें तो कॉन्सर्ट में नहीं आया था, लेकिन जब 23 में हमारा फेस्ट हुआ था, उसमें हम लोग ने गुरलीन पन्नू को इनवाइट किया था, कॉमेडियन को। और कोक स्टूडियो था हमारे यहाँ कॉन्सर्ट्स के लिए। तो बस वही था। अभी एक साल एक्चुअली हमारे फेस्ट में गैप हो गया था, जिसकी वजह से वापस उसको ऑन ट्रैक लाना काफी मुश्किल था। इस साल जैसे तैसे सीनियर्स के साथ मिलके हम सब ने किया, वापस से हमारा फेस्ट ऑन ट्रैक आ गया है। काफी अच्छा हुआ था इस साल हमारा। अब वापस नेक्स्ट ईयर की तैयारी हम अभी से चालू करेंगे। तो जो कल्चरल्स में अभी हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इंटर आईटी कल्चरल्स मीट, जो कि अभी दिसंबर में होगा। बढ़िया, मतलब फुल ऑन लाइक चल रहा है सबका and मतलब everyone's like just फुल have ऑन। a good time I think. हम्म। बढ़िया, pretty good, pretty good, pretty good. मतलब I think we almost covered like every aspect of मतलब A to Z, भाई कैसे क्या चालू होता है, how you get like into IIT Goa and how you can move forward. तो what do you think, मतलब if I ask you how, if you can summarize it, how does a semester in the life of a mechanical engineering student at IIT Goa looks like? A semester is more fun actually than studies. मतलब हाँ, प्रेशर आपके पास तब आता है जब आप मिड सेम में बैठे हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन अभी तक जितने मैंने यहाँ के कोर्सेज देखे हैं, उसमें एज सच प्रेशर वाली ज्यादा बात है नहीं। साथ में लोग रहते हैं, पढ़ने वाले, कम पढ़ने वाले, सब मदद कर देते हैं।
एक सेम पूरा जो निकलता है वो पता नहीं कैसे निकल जाता है, एक्चुअली में टाइम फ्लाइज। जो मेरा लास्ट सेम था वो एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो इतनी स्पीड में कैसे निकला। तो जो सेम हमारा निकलता है वो किसी चीज की तैयारी में निकल गया। अभी हम लोग की टीम्स बनी है, जैसे हमारी डांस टीम है जिसका मैं मेंबर हूँ। तो लाइक हम लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कोरियो सेट करेंगे, एक कोरियो सेट करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे, अगर नहीं जमा दूसरी जगह दूसरा करेंगे, तो वही सब प्रिपरेशंस। फिर आई एम ऑल्सो द मीडिया सेक्रेटरी, तो शूट्स वगैरह बाकी क्लब के साथ कोलैबोरेट करना, उनका शूट करना, उनके एडिट्स बनाना, फिर पोस्टिंग वगैरह सब काम रहेगा हमारे साथ। तो हाँ, कोलैबोरेशन है, मतलब साथ में रह के सबके साथ आसानी से निकल जाता है एक सेमेस्टर, एग्जाम्स भी आसानी से निकल जाते हैं। बढ़िया है, मतलब भाई का क्या फुल लोड में चलता है, शूट्स वूट्स कर रहा है भाई, फुल फुल डांस वांस कर रहा है। बढ़िया बढ़िया, इट्स प्रीटी गुड, इट्स प्रीटी गुड। तो अच्छा, व्हाट्स द लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव लाइक एनीवन who wants to come to like any IIT, yeah, anything that you want to like say from your side? तो मेन जो मेरे दिमाग में एडवाइस रहा है कि अप्स एंड डाउन्स रहेगा हमेशा। सब सब अपना डाउन देखेंगे, मतलब जो भी बाहर से देख रहा होगा उसको सिर्फ हमारा डाउन दिखेगा कि हाँ ये अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन जब आप उसी डाउन को अपनी सक्सेस में बदल देते हो तो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं। तो मतलब हाँ, अप्स एंड डाउन्स रहेगा। डाउन्स में आपके साथ सिर्फ आपका फैमिली रहेगा, अप्स में आपके पास सब आ जाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि डाउन्स में मेरे साथ कौन था, उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, उन्हीं की हेल्प करनी है, उनसे ही हेल्प लेनी है। दैट्स ऑल। Well, brother, well, it was like great to have you enough on like our podcast, and I hope like by जो भी देख रहा है इसको, like any aspirants that we have, भाई उनको एक like motivation मिले, they get like more insights of how's the life at IIT Goa, and I would say that just keep killing it and crushing it because well, that's what we have the life for, huh? So see you guys in the next podcast. Huh?